Yeah, now the session is going to be recorded. You have to bump, you have to be silent. If you have any question after ending my lecture, you can just, if I complete as I complete my lecture, I will give you time, you can ask if you have any query or if you have any question. Second thing, I would like to tell you when I talk about your syllabus, till now what I have done. What I have done, if you go, I have done Unit 8. I have done Unit 8. And even I told you, especially BA first year, semester first. Now you are registered, you are enrolled, या you can say you got admission in BA फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट. आप लोगों को जिनको भी एडमिशन जो मिला है वो BA फर्स्ट ईयर और सेमेस्टर फर्स्ट में मिला हुआ है. मैंने एक बात कही थी, अगर आपको याद होगा, कि नाउ जो बीए होगा वो 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम कितने साल का होगा, 4 साल का होगा. और उस 4 साल के डिग्री प्रोग्राम में आपको जो है कह सकते हैं सर्टिफिकेट कोर्स you will get diploma, you will get degree course, and you will also get in fourth year you will get a degree with research. A degree with research, you have to write some research papers. So you will come to know, if you are doing this degree, if you are taking this degree, what you have to do in fourth year, you will come to know how to write a research paper, yeah, how to do research. So the with BA which has been done earlier, you will come to know वो चीजें बदल रही, उस पैटर्न पर नहीं है. Now you have to go with other subjects also. Sometimes you come to know that you can just take any subject. Means there is no bar of the faculty ki faculty of arts, faculty of commerce, or you can say faculty of science. There is no bar at all. Any student of commerce can take English literature, and any student of BA who has taken English literature can take any subject from commerce as minor or major if you are interested. Second important point which I told you, that is when I talk about this particular course, 3 years degree course, I told you it's not easy. It's not easy because most of the time when I was in class, when I was taking a physical class, I just told you that you all have to be present in my class because you will come to know what the syllabus you have and how you have to crack your examination, because your examination is scheduled from 24th January. It was scheduled either 24th or 26th January. It was scheduled, but due to the third wave of COVID-19, yeah, due to the outbreak of the COVID-19, we all again it was said, yeah, it was instructed that I have to take your class online. There will be no physical class because that's a contagious disease and we will come in the contact of the people and there's the chance that we will be infected. So to save your life, to save the life of other people, this is the only beat which we have to believe. This is why I have taken so many classes online. When even I was taking the physical class, but in that physical class, I just developed the art how we have to take the online class. And I just made you habitual. I just say ki be ready, and it's the time of education 4.0. And in education 4.0 or industry 4.0, you will come to know the use of technology. That is highly significant. Use of technology and how technology is used to run the class, to operate the class. These things I told you. So what I told you, what I expect from you, I just expect only some important points. सबसे पहला चीज कि you have to keep in your mind that you are a student, yeah, you are students who are pursuing BA, and that is 4 years degree program. आपको अपने माइंड में ये हमेशा रख लेना है कि आप वो जनरेशन है जो 4 साल की बीए जिसको करना है. 3 साल की जनरेशन जा चुकी है, या 3 साल का जो बीए का कोर्स होता था वो अब नहीं है. तो सबसे पहला पॉइंट, द फर्स्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट which you have to keep in your mind, that you are the generation, you are the people, you are the students who have to go with 4 years degree program. Number one point.
Number 2 point, which you have to keep in your mind, number 2 point is that you have to be ready to get certificate course. You have to be ready to get diploma course. You have to be ready to get 3 years degree program, and in fourth year you will come to know how to do research, yeah, how to write a research paper if you are interested in any field, the particular art of the research which people come to know after post graduation. These things you will come to know in fourth year. फोर्थ ईयर्स में ही आपको पता चल जाएगा कि कैसे जो है आपको काम करना है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको इसके पहले भी बताया था, व्हेन आई वाज टेकिंग द फिजिकल क्लासरूम मींस सिटिंग इन माय कैंपस, आई जस्ट टोल्ड यू यू हैव टू अपीयर फोर्थ फोर टाइम्स इन एग्जामिनेशन। आपको साल भर में 4 बार एग्जामिनेशन में आना है। पहले जो एग्जामिनेशन होता था वो केवल एक बार साल भर में होता था, बट नाउ द पॉलिसी हैज चेंज्ड। नाउ यू हैव टू अपीयर 4 टाइम्स इन एग्जामिनेशन। आपको एग्जामिनेशन में 4 बार आना, ये एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है। आपको 4 बार कैसे आना है? 4 बार इस तरह से आना है कि 2 बार आपका इंटरनल टेस्ट होगा, दैट विल बी कंडक्टेड बाय योर डिपार्टमेंट, दैट विल बी कंडक्टेड बाय मी या बाय द टीचर्स ऑफ योर डिपार्टमेंट। वो चीजें आपको 2 बार अपियर होना है सेमेस्टर वाइज। सेमेस्टर वाइज, तो सेमेस्टर वाइज में आप ये मान के चल सकते हैं कि 4 मंथ्स का एक सेमेस्टर, 6 मंथ्स का एक सेमेस्टर, वो सारी चीजें जिसमें 90 डेज के लेक्चर्स दिए गए कि विद इन 90 डेज वी हैव टू कंप्लीट आवर सिलेबस। तो 90 डेज का सिलेबस और उसका उसमें कंप्लीट करना है। और आपको याद होगा कि आई हैव कंडक्टेड माय फर्स्ट टेस्ट एंड बट some people, some students could not appear, and even I sent that list. Even I sent that list. I also informed honorable and reverend principals that these students could not appear in the examination. So they must know कि what is going to happen with them. तो एक चीज है कि आपको इंटरनल टेस्ट में अपियर होना, कितने टाइम्स आपको अपियर होना इंटरनल टेस्ट में? 2 टाइम्स साल भर में आपको अपियर होना है, और फिर 2 टाइम्स आपको एग्जामिनेशन में अपियर होना है, दैट विल बी कंडक्टेड बाय आर यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। दीज आर द 2 or 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड, जो आपको ध्यान में रखना है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि हर टॉपिक का आपको असाइनमेंट तैयार करना है। आपने असाइनमेंट तैयार किया, बहुत सारे बच्चों ने, सम गॉट लेट, सम सबमिटेड ऑन टाइम, और कुछ ने बहुत खूबसूरत तैयार किया था। आई जस्ट टोल्ड यू what happened that these things you will come to know if you go with the people who have done graduation, post graduation, yeah, if you come to know about your seniors, if you ask question कि क्या उनके समय में ये होता था, you will come to know no, not at all. These things were not in practice. These things were not in practice when your seniors were doing graduation or post graduation. So it's the National Education Policy 2020. It's a part of the National Education Policy 2020. 2020 जो National Education Policy वो उसका हिस्सा है, और उसमें साफ साफ कहा गया है कि 75% अटेंडेंस इज मैंडेटरी। इफ यू डोंट हैव 75% अटेंडेंस यू विल नॉट बी एलिजिबल टू अपीयर इन एनुअल एग्जामिनेशन, एकदम क्लियर लिखा हुआ है। दूसरा चीज, एक चीज ये भी है कि जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव नॉट जॉइंड दिस सेशन, इवन 175 पीपल आर enrolled, they must know that the whole lecture is going to be recorded, and it is going to be recorded who are taking who have joined this session or not. As I'm going to complete my lecture, I will send the whole attendance to honorable principal sir, and he will send to university तुरंत आपका। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, वो एक चीज ध्यान में रखना है कि व्हाट यू हैव टू डू। आपको असाइनमेंट आपने पहला जमा कर दिया, मैंने सेकंड असाइनमेंट की बात की थी, कुछ लोग लेकर के आए थे बता रहे क्लास में, and but I said that no, I will give you time as per instruction of university, yeah, as per instruction of honorable principals, yeah, you can say, yeah, if I decide any date, you all have to come, and you don't have to submit your assignment. Second assignment, you have to keep it your own self, and you have to only note down or write down
the topic which I'm going to teach you, the topic which I have taught you. Leaving the first assignment, जो फर्स्ट असाइनमेंट था उसमें जो चीजें पढ़ाई गई थी उसको छोड़ करके जो सेकेंड असाइनमेंट है उसमें आपको क्या करना है, सेकेंड असाइनमेंट आपको तैयार करना है. मीन्स इन द फर्स्ट असाइनमेंट इफ यू रिमेम्बर यू हैव डन यूनिट एट्थ आपने फर्स्ट असाइनमेंट में किया हुआ था. यूनिट एट्थ को अगर आपको याद होगा यूनिट एट्थ में जब आपने फर्स्ट असाइनमेंट किया था तो व्हाट द टॉपिक यू गॉट अबाउट ई कंटेंट, you got about how to use mail, how to just mail someone, and how to write a beautiful letter and mail it to someone. And I just told you about the formal letter, I told you about the informal letter, and I also told you how to write a beautiful blog, yeah, how to create a beautiful blog. And I also said that you have to be your own YouTube channel. मैंने आपको ये भी कहा था कि आपका अपना खुद का YouTube चैनल होना चाहिए. You have to just deliver a lecture, you have to create your a video, and you have to upload that video on your YouTube channel. So this is the time when the things are going to change. ये एक ऐसा समय है जब चीजें बहुत तेजी के साथ बदल रही है और इस बदलते हुए समय में you must be techno savvy. You have to know the use of the smartphone, you have to know the use of you can say laptop, tablet, computer, and how you can gain much more. आप कैसे इससे ले सकते हैं ये चीजें भी आपको पता होना चाहिए. Second important point, if you go with these things, if you find these things, you will be able to understand why the government is emphasizing, why the government was distributing laptop, tablet, and other things. Why? Because in coming days, especially in 2022, आप देखेंगे कि 2022 में ही आप देखेंगे कि चीजें चेंज हो जाएंगी. बहुत सारी चीजें ऑनलाइन होगी. आपका टेस्ट अब जो अगला कराया जाएगा वो केवल ऑनलाइन होगा. अब आपको फिजिकल टेस्ट में आने की जरूरत नहीं होगी कि नाउ आई विल जस्ट prepare a test paper, you will come and sit down in classroom. No, not at all. ऐसा नहीं होगा. So things are going to change in 2022. And even government has instructed that we all have to follow the policy that is the blended learning or flipped classroom. क्लासरूम का एक नया स्ट्रक्चर आया हुआ है और वह स्ट्रक्चर क्या है, उसका नाम दिया गया ब्लेंडेड लर्निंग, BLENDED, या एक और शब्द है फ्लिप्ड क्लासरूम, PHILIPPED. सो blended learning and flipped classroom, we must go. Here I just want to tell you, when I talk about blended learning, when I talk about flipped classroom, what the changes do you find? In blended learning means the mixed method of teaching. Blend का मतलब होता है मिक्स करना, किसी चीज को मिला देना. और उसमें गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिया है, बाकायदा गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड लेटर दैट 40% लेक्चर विल बी ऑनलाइन. 40% जो लेक्चर होगा वो ऑनलाइन होगा, 60% जो लेक्चर होगा वो ऑफलाइन होगा. तो ये जितना भी लेक्चर, द लेक्चर विच आई डिलीवर्ड यू इवन सिटिंग इन फिजिकल क्लासरूम, बट वी यूज्ड स्मार्टफोन, वी यूज्ड ईयरफोन, एंड इवन यू नो दैट आई हैव माय ओन यूट्यूब चैनल एंड यू फाइंड दैट कि most of the video I upload there, you come to know about those videos and those lectures, the same thing. But as I got instruction yesterday, now again there is the instruction that I have to go with online class. Then I just become active and I informed you on time that tomorrow I will be here at 8:30. I will start on my class. So what I want to tell you, I just want to say these are the policies of the government that is going to be changed entirely, rapidly, swiftly, very fast, and we all have to go with these policies. We can't ignore this. हम इस चीज को ignore नहीं कर सकते. We are bound to follow. And you have also to go. आपको भी उसके साथ जाना है. आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं I don't have smartphone, या कुछ हो सकता है, लेकिन आज के जमाने में most of the people have smartphone, and instead of spending time on WhatsApp, instead of spending time on Facebook, instead of spending time on Twitter, you all have to use your smartphone to get knowledge. आपको अपने स्मार्टफोन का जो यूज करना है वो नॉलेज को यूज करने के लिए करना है. ये नहीं कि मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर बिजी, मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर स्पेंडिंग योर टाइम ऑन ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप,
creating ID, all these things. No, not at all. क्योंकि बहुत जल्दी जो है सारे लोगों के पेरेंट्स से बात होने वाली है, एक मीटिंग बहुत जल्दी पेरेंट्स के साथ होने वाली है। तो ये सब चीजें भी हमें ध्यान में रखना है कि हम गार्जियन के साथ कभी भी बात कर सकते हैं, हम गार्जियन के साथ कभी भी मीटिंग कर सकते हैं कि आपने क्या कोर्स किया, कितने दिन आप कॉलेज में आ रहे हैं, कितना आपने क्लास में अटेंडेंस है। आई हैव ऑल द रिकॉर्ड। हो सकता है कुछ गार्जियन इस बात को सुन भी रहे हो, तो मैं ये नोटिस में डालना चाहता हूँ कि पर्सनली आई कैन कॉल मीटिंग एनी टाइम। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको एक्टिव रहना है जितनी भी देर तक सेशन चलेगा। 45 मिनट्स का सेशन होगा, उस 45 मिनट्स के सेशन में यू हैव टू बी एक्टिव, यू हैव टू गिव योर रिस्पॉन्स इफ आई आस्क एनी क्वेश्चन। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट व्हाट की जो मिक्स्ड मेथड टीचिंग है वो चीजें बदल रही है। अब आप ऐसे टीचर नहीं पाएंगे जो एक मार्कर लिए होंगे, एक डस्टर लिए होंगे, देयर विल बी द व्हाइट बोर्ड और उसके बाद चेयर्स लगी होगी, बच्चे बैठे होंगे, देन that teacher will teach and just rub the whiteboard, erase that whiteboard. No, not at all. ऐसा नहीं, चीजें जो है बदलने जा रही है। You will find the smart classroom. And what do you mean by smart classroom? Whiteboard की जगह डिजिटल बोर्ड होगा। कौन सा बोर्ड होगा? डिजिटल बोर्ड। और वो जो बोर्ड होगा डिजिटल बोर्ड, वो टचिंग पर होगा। केवल टीचर वहां जाएगा, टच करेगा, एक बार में सारी चीजें इरेज हो जाएंगी। उसे जिस टॉपिक को लाना होगा उस टॉपिक को टच करेगा। That is the using of either pen, means a type of pen which we use to write on tablet, or sometimes you find the digital board, and when you touch that particular thing, the topic comes out and the things are going to be erased. So when we talk about the smart classroom, be habitual, accommodate yourself, try to adjust yourself and try to go with the changing policy. जो बदलता हुआ समय है, जो बदलता हुआ जमाना है, जो बदलती हुई चीजें हैं, हमें उसके साथ चलना है, वरना हम बहुत पीछे रह जाएंगे। मैं अपनी क्लास में भी ये बात कहता हूँ और अपनी आपको ऑनलाइन वैसे भी मैं आपको हमेशा ये ताकीद करता रहता हूँ। आई ऑलवेज गिव दीज पॉइंट्स कि यू हैव टू एडजस्ट योरसेल्फ विद द पैसेज ऑफ टाइम। द स्मार्टफोन विच यू हैव टेकन इन योर पॉकेट, द स्मार्टफोन विच यू हैव इन योर हैंड, उस चीज को आपको अपने आप को स्मार्ट बनाने के लिए करना है। एंड यू विल बी स्मार्ट ओनली दैट टाइम when you use that device, when you use that mobile, when you use that instrument for what, to acquire knowledge, to get knowledge, not to use WhatsApp, not to use Facebook, not to use just to see any content. No, not at all. You have to see those contents which are highly significant, which can shape your career, which can change your life. मैंने कई बार एग्जांपल दिया था कि देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने केवल YouTube चैनल पे बहुत सारे IIT के लेक्चर्स पढ़े हैं, IITians के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, बहुत सारे मेडिकल की दोज वर प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, वहां पे जाके लोगों ने पढ़ाई की है, अपने घर में बैठकर केवल YouTube चैनल पर ही। खान एकेडमी का जो लेक्चर है, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कराते हैं, उनके लेक्चर्स को लोगों ने सुन करके जो है दे क्रैक्ड IAS, दे क्रैक्ड PCS, वहां से भी लोगों ने किया हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि नाउ यू आर स्टूडेंट एंड बीइंग द स्टूडेंट यू हैव टू शो योर लॉयल्टी, यू हैव टू शो योर डेडिकेशन, you have to do your duties. Your parents don't accept that you have to read, you have to write, you have to spend your time to get knowledge. No, इसके अलावा आपसे और किसी चीज की तवक्को नहीं की जाती है। This is why you all have to be ready. You all have to do your duty honestly. You all have to be what? You all have to be honest, sincere, and you don't have to waste your time either and either. I have noticed many people who come in my class. Sometimes they come late. Sometimes they don't come. I have noticed these people, and you know it very well. They come and they spend their time. They don't do anything. So I have also prepared a list. मैं उनके भी पेरेंट्स से बात करूंगा इस चीज को लेकर के। तो ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है कि चीजें चेंज होती है। अब मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट डे। बहुत ज्यादा मैं टॉपिक को लेकर के नहीं, लेकिन मैं दोबारा, क्योंकि मेनी डेज हैव गॉन, तो मैं उस चीज को, सिलेबस को मैं दोबारा बता देना चाहता हूँ कि क्या पढ़ाया गया है, क्या बचा हुआ पढ़ाने से। रिमेंबर दैट व्हेन आई टॉक अबाउट syllabus,
यू विल कम टू नो कि उस सिलेबस में आपका 8th यूनिट पे बटा हुआ, कितने यूनिट पे बटा हुआ, 8th यूनिट पे। और जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसे 19 डेज के लेक्चर में आई हैव टू कंप्लीट। हाउ मेनी डेज, 19 डेज। कुछ का लोगों का एडमिशन लेट हुआ, कुछ लोग सोते रह गए थे, कुछ लोगों ने अर्ली आकर के क्लास को ज्वाइन किया। दे नो इट वेरी वेल कि अप्रोक्सीमेटली वी हैव डन 80%, हम लोगों ने लगभग लगभग 80% सिलेबस कवर कर लिया है। और उस 80% सिलेबस के कवर करने के बाद आई कंडक्टेड इंटरनल टेस्ट। आई आल्सो सेड दैट यू हैव टू सबमिट योर असाइनमेंट। कुछ लोगों ने जमा किया है, बहुत सारे लोगों ने जमा कर दिया, बहुत सारे लोग टेस्ट में अपीयर भी हुए थे। जो नहीं अपीयर हुए हैं वो जाने, उनका काम जाने, बिकॉज आई गेव चांस मेनी टाइम्स, उनको चांस दिया गया, उनको बताया गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ यू गो विद दीज थिंग्स कि आपका सिलेबस क्या है, आपका सिलेबस 8 यूनिट पे बटा हुआ है। कितने यूनिट पे, 8th यूनिट पे। सबसे पहले मैंने लास्ट यूनिट को टच किया था, क्योंकि लास्ट यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। And throughout your life, you will come to know that is highly helpful, much helpful, that is highly significant, highly fruitful. And in the last unit of your syllabus, you come to know the use of blog, you come to know the use of e-content, you come to know the use of PPT, you come to know how to write a letter, you come to know what is the importance of email, all these things you come to know. तो जो 8th यूनिट है वो सब कुछ अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर से रिलेटेड है, और प्रैक्टिकल लाइफ में हमें जिन चीजों की जरूरत होती है वह उससे रिलेटेड है। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि प्रैक्टिकल लाइफ में हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है, जैसे बीइंग अ स्टूडेंट या बीइंग अ जॉब सीकर, हमें इसकी जरूरत होती है कि हम एक अच्छा रिज्यूम तैयार करें। तो यूनिट 8 में क्या बताया गया है कि यू हैव टू प्रिपेयर अ रिज्यूम, यू हैव टू प्रिपेयर अ रिज्यूमे। इसके अलावा एक और चीज तैयार किया गया है, उसमें बताया गया कि बायोडेटा, यू हैव टू गो विद योर बायोडेटा। आपको अपने बायोडेटा को भी तैयार करना है, बायोडेटा के साथ भी आपको जाना है। तो रिज्यूम पे लेके बात की गई है, बायोडेटा को लेकर के बात की गई है। उसके अलावा हमसे ये उम्मीद की जाती है कि आपको क्या करना है, एक खूबसूरत लेटर लिखने की कला आनी चाहिए। यू मस्ट नो हाउ टू राइट अ ब्यूटीफुल लेटर। आई जस्ट टोल्ड यू दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, मैंने आपको बताया। एंड आई टोल्ड यू कि फॉर्मल लेटर मींस ऑफिशियल लेटर, यू आर गोइंग टू एड्रेस योर प्रिंसिपल, you are going to address any officers. And in formal letter, you don't have to write about your own self. You are not going to share anything with your friend. That means always in official letter you address your officers, your officials you address. उसमें उसको लिखा जाता है जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम को लेकर के या कोई भी चीज जो है। इवन कुछ लोग सब्जेक्ट को चेंज करने के लिए भी आए हुए थे, उन्होंने लेटर लिखा था, बट आई डोंट नो कि हिंदी में भी सही से नहीं लिख पा रहे थे। ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। Second important point, which I just want to tell you when I talk about these things. Yeah, may I know what is the time? Because I have to take a class of BA third year on 19/9/15. Can anyone respond me? You have also be another schedule. What's the time by your watch? That's why we Okay, okay. Now we have 4 or 5 minutes. Okay, now we have 4 or 5 minutes. So I was telling you in unit 8 what I have done. In unit 8, I just tell you two important points. And what was that? In unit 4, I told you formal letter, informal letter. I told you about resume. I told you about biodata. I told you about blogging. I told you about e-content. I told you about PPT. I told you if you are going to resign from a post, अगर आप किसी पोस्ट से रिजाइन कर रहे हैं तब आपको क्या करना है, कैसा लेटर लिखना है। इफ यू आर सीकिंग अ जॉब देन हाउ यू हैव टू राइट अ लेटर, दिस थिंग्स आई टोल्ड यू। एंड इवन यू विल कम टू नो जो सेकंड आपका सेमेस्टर, जो आपका नेक्स्ट यूनिट था जो मैंने कवर किया था वो एसेज और एसेइस्ट पर था। आई कवर्ड एसेज और एसेइस्ट को लेकर के था, और उस एसेज और एसेइस्ट में आई हैव गॉन विद फ्रांसिस बेकन of studies. I have gone with Joseph Edison, Sir Roger at home. Yeah, Sir Roger at church. Always I miss this particular because these are the two popular lessons of Joseph Edison. I also taught you or deliver a lecture on
ड्रीम चिल्ड्रन, रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब, उसको लेकर के मैंने बात किया। मैंने कुछ शॉर्ट स्टोरीज लिया हुआ था, एंटन चेकोव का द लैमेंट मैंने लिया हुआ था, टेरर को मैंने लिया था, बारबर्स ट्रेड यूनियन मैंने लिया हुआ था, एंड आई थिंक कि कुछ अदर भी शॉर्ट स्टोरीज थी जो मैंने कवर किया था। मैंने फार्म्स एंड इट्स प्रोज एंड इट्स टाइप्स पर मैंने एक लेक्चर डिलीवर किया था। व्हाट इज बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मीमवायर, ट्रेवलॉग, and formal essay, informal essay, periodical essay, now a short story. Even I told you elements of short story. मैंने आपको elements of short story पर भी एक lecture deliver किया था. I sent you PDF file also. So whatever the lecture I delivered, I also sent you PDF file. वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आप देखेंगे तो यूनिट 4 आपका कवर हो गया था, प्रोज एंड इट्स टाइप्स कवर हो गया था, एसेज और एसेइस्ट आपके कवर हो गए थे, और इसके अलावा कुछ और भी शॉर्ट स्टोरीज थी उसको भी मैंने कवर किया हुआ था। और अब जो रिमेनिंग डेज है, इस रिमेनिंग डेज में मैं यूनिट फर्स्ट को लेकर के बात करूंगा, और जो पहले के हो चुके हैं उनका मैं ओरल टेस्ट कराऊंगा, ऑनलाइन टेस्ट, नॉट ओरल बट आई विल कंडक्ट ऑनलाइन टेस्ट, और वो मैंने क्रिएट किया हुआ है। हो सकता है कि आज आपको एक नोटिस जाए व्हाट्सएप ग्रुप में कि इतने बजे वो टेस्ट होगा, और उसके क्वेश्चंस को मैं क्रिएट कर दूंगा, दैट विल बी अवेलेबल। नाउ इट्स योर टाइम, इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग क्लास और एनी डाउट, उसको आप कर सकते हैं। यूनिट फर्स्ट का जो सिलेबस है, उस यूनिट फर्स्ट के सिलेबस में इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश को लेके बात की गई है, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर है, और रविंद्रनाथ टैगोर के अलावा जो इंडियन ऑथर्स बॉर्न इन इंडिया बट रोट इन इंग्लिश, यू विल कम टू अबाउट दोज ऑथर्स। उसमें एपीजे भी है, एपीजे का एक अलग आपका एक उनका आपका एक ऐसे भी है, उसे भी हमें पढ़ना है। नाउ जस्ट आई वांट टू नो, हैव यू एनी क्वेरी, हैव यू एनी डाउट, उसको लेके आप बात कर सकते हैं। किसी की कोई क्वेरी, कोई डाउट, या शुड आई बाइंड अप दिस सेशन? No, not at all. Okay. Sir. Okay, we will meet you tomorrow same time. Okay, sir.